हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में आता है। अभी जो जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के फार्म लगने वाले हैं उसमें 30 मार्क्स का, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना, ठीक है। द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट. Computer is a programmable device designed to carry out a sequence of arithmetical and logical operations sequentially and automatically. A computer is an electronic machine that accepts data that is input from the user, processes the data by performing calculations and operations on it, and then generates the desired results that is output to the user. Okay. In the process of development of automating computers, many scientists and developers have made significant contributions. We can understand these developments by reading the following points related to the history of computers. Number 1. In the beginning, there were no computers. To add or subtract, man used his fingers and toes. The earliest known tool used for computation was abacus. It was developed in China in 16th century. The abacus was the first mechanical computer used to perform addition, subtraction, multiplication, and divisions. Now, Blaise Pascal. Blaise Pascal developed the first adding machine in the year 1642 that could perform additions and subtractions directly and multiplications and divisions by repetitions. Blaise Pascal. Then Charles Babbage is considered as the father of computer. Charles Babbage is considered as the father of computer because he invented difference engine in 1822 and then analytical engine in 1833 which can store the information in punch cards. ठीक है ना। तो चार्ल्स बेबेज ने जो है डिफरेंस इंजन बनाया था, इन्वेंट करा था 1822 में। उसके बाद एनालिटिकल इंजन 1833 में, ठीक है ना। इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। उसके बाद आ गया एलन ट्यूरिंग. एलन ट्यूरिंग इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस. एलन ट्यूरिंग एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस. इन 1936 एलन ट्यूरिंग प्रोवाइडेड द कंसेप्ट ऑफ algorithm and computation with the Turing machine and blueprint for the electronic digital computer. Then Atanasoff-Berry computer ABC. Atanasoff-Berry computer was the world's first unprogrammable electronic digital computer used for binary calculation. It was developed during 1939 से 1942 by Dr. John Vincent Atanasoff. Okay. Now, ENIAC, that is electronic numerical integrator and computer. ENIAC, electronic numerical integrator and computer. This ENIAC was the first digital computing device invented by John Adam Presper Eckert. John Adam Presper Eckert and John Mauchly in 1946. Okay. Then EDSAC, EDSAC. EDSAC means Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Electronic Delay Storage Automatic Calculator, EDSAC, was the world's first stored program computer to operate a regular computer device invented by Maurice Wilkes in 1949. ठीक है। तो मॉरिस विल्कस ने 1949 में जो है इन्वेंट करा था, ठीक है। दुनिया का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है रेगुलर कंप्यूटर सर्विस के लिए, ठीक है ना। उसके बाद है यूनिवैक, दैट इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. दिस यूनिवैक वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर फॉर कमर्शियल यूज़ developed by Eckert and John William Mauchly in 1951. Okay. Now generations of computer. A generation refers to the state of improvement in the development of system. Computers are built of electromechanical before generation. Each generation of computer is characterized by a major technological development that fundamentally change the way computers operate. Now let's see different generations of computer. Like
फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 56 तक, सेकंड 1956 से 63 तक, थर्ड जो है 1964 से 71 तक, फोर्थ जो है 1971 से 1989 तक, और फिफ्थ जो है 1989 से अभी तक है, ठीक है। पहले वाली जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें स्विचिंग डिवाइस जो है वैक्यूम ट्यूब्स थी। सेकंड वाली में स्विचिंग डिवाइस ट्रांजिस्टर थे। थर्ड वाली में था आईसी दैट इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या स्विचिंग डिवाइस। फोर्थ वाली में स्विचिंग डिवाइस थे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड LSI सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ वाली में। फिफ्थ वाली में स्विचिंग डिवाइस थी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, SLSI, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, ये स्विचिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं। अच्छा, स्टोरेज डिवाइस देखें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस थी मैग्नेटिक ड्रम्स, ओके। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस थी मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। थर्ड जनरेशन वाले में स्टोरेज डिवाइस थी मैग्नेटिक कोर एज प्राइमरी स्टोरेज मीडियम। फोर्थ वाली जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस थी सेमीकंडक्टर मेमोरी और विनचेस्टर डिस्क, ठीक है ना। ये फोर्थ वाले की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी और विनचेस्टर डिस्क, ये स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद स्पीड देखें तो फर्स्ट जनरेशन की स्पीड थी 333 माइक्रो सेकेंड, सेकंड वाले की 10 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। थर्ड वाले की 100 नैनो सेकेंड, फोर्थ वाले की 300 नैनो सेकेंड, ठीक है ना। फिफ्थ का अभी उतना नहीं दिया, ठीक है। फिर अगर इनका ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखें फर्स्ट जनरेशन का था ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड जनरेशन का था टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये थे सेकंड वाली जनरेशन में, ठीक है। थर्ड वाली कंप्यूटर जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम था रियल टाइम सिस्टम, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम था टाइम शेयरिंग नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद GUI इंटरफेस, ठीक है। ये थे किसमें, फोर्थ वाली कंप्यूटर जनरेशन की ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लैंग्वेजेस देखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज थी वो थी मशीन लैंग्वेज, बाइनरी नंबर था ज़ीरोज़ और वन, ठीक है ना, ज़ीरोज़ और वंस, ठीक है। मशीन लैंग्वेज थे फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड